is called Chaita Guru. You understand? Chaita Guru. Chaita Guru, that is called, what is called? Paramatma. Paramatma, who resides in our heart. That is called Chaita Guru. So this actual Janma Janma Prabhu say, that means Chaita Guru, who resides in our heart, he is actual he is a real spiritual master. Then his expansion in manifested in this material world, that is called Guru Tattva. You understand? That Guru Tattva, he is always with you. So for the Dibbogyan Dilaji, Chakshudam Dilaji, Janme Prabhu se. Chakshud, Dibbogyan, Chakshudyan, that is called transcendental. The knowledge of relationship is actually coming from Baladev Prabhu to Chaita Guru. Then same Chaita Guru manifested in front of us, that is called Mahanta Guru. Again we discuss about this kotha. Mahanta Guru, Chaita Guru, who resides in our heart. Then same Chaita Guru manifested in front of our heart, that is called Mahanta Guru. And that Mahanta Guru manifested in front is the form of our Guru Pada. So life after life, birth after birth, the same Krishna, Nityananda Prabhu or Baladev Prabhu, then Mahanta Guru, Chaita Guru, Mahanta Guru, then Gurudev is manifested in the world. Understand? Because this is a little bit complicated to understand for you, but if when you study and listen Hari Katha, then your realization will come. That is called Chaita Guru Vapusha. Srimad Bhagavatam gives evidence, Chaita Guru Vapusha. Then same Chaita Guru manifested in front of me, but in front of us, that is the form of Gurudev, that which you are looking in front of you. For this regard, Janma Janma Prabhu, same Guru is coming in front of you. Same Baladev Prabhu, same, what is called, Chaita Guru, same Mahanta Guru, same is called. You understand? Because you are looking this Gurudev form, actually that is not the real form you are looking. That is called you are looking just according your mundane vision you are looking. But Guru's form is this way. Then according to our Rasa Vichars, actual Guru Tattva is coming from Srimati Radhika. Akhanda Guru Tattva Srimati Radhika. The two conceptions, one is called Tattva Vichar and the called Rasa Vichar. Understand? Tattva Vichar conception of the scripture, that is the Tattva Vichar. And another Rasa Vichar, the conception of the melody. Tattva Vichar I told this thing, Krishna, Baladev Prabhu, then Chaita Guru, Mahanta Guru, then what you are looking in front of you, that Guru. Dat is Tattva Vichar, dus volgens de bevestigingen van de geschriften. Maar er zijn twee, je hebt Tattva Vichar, je hebt Ras Vichar. Ras Vichar is het waarheid vanuit het gemoed. En daar zit er een nuance in. Ras Vichar में क्या बोलते हैं? Then Rasa Vichar, that is called Yes. the conception of the melody is called Srimati Radhika. Guru Tattva is that is called the Srimati Radhika expansion, that is called the Guru. That Guru is called simple, that is a Guru Upasaki. Gurudev, his origin form, the Sakhis of Srimati Radhika. But you cannot see with your material vision. When you bhajan and sadhan, that time will be manifest in your heart. For this regard, Vishwanath Chakravarti explains Nikunja Juno Ratikele Siddhai Ja Jalivi Juktir Apekshani Tatradi Dakshat Otivallabhasra Vande Guru Sri Charana. That is very simple also, because Srimati Radhika, then her expansion manifested in front of us, that is called Guru Rupa Shakti. Because now in our material senses, material activity looking, Guru is male form or female form. We are looking this way. He's tall, he's short, dark. This is our mundane conception.
conception. That is called the sthul vichar. Sthul vichar means the conception of gross body, gross conception. A sukshma vichar, that is called very minute conception that Gurudev, actually the direct manifestation of Srimati Radhika. That is called Guru Rupa Sakhi, bhajan, yeah. Because this body, we are looking this body is changeable. Male body, female body is changeable. But Guru's body that gets transcendental, that is called the Atma Sarir. Atma Sarir, understand? The transcendental constitutional form, that is called Atma Sarir. First you understand, you have also one very nice, beautiful, transcendental constitutional form. Je originele atma heeft een vorm. Atma sarir betekent lichaam van de atma. En dat You have de also. spirituele wereld. Ja. That is called the spiritual body. You have. In the same way, Gurudev has also this form, spiritual form in there. But according to the Ras Vichar, those who are Madhurya Ras, that Guru body is called female form, or those Gurus are Dasya, Sakha or Vatsalya, that Guru form is called male form. This is what Thakur explained this. But you have already. Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Kabunai Sravanadi Suddha Chitte Karahudai. You have everything. Just to manifest. Just give an example. One tree. Tree is growing up. Plant, then tree. Tree is going up, then coming the flowers, then fruits, then fruits to seeds, then again coming in. Rotation is coming in this way. Actually, in the fruits or in the seed, all the potency inside there. Do you understand? The seed. The seed when planted in the earth, then that is sprouted, then plant comes. In the same way, all the living entities, conscious being, Atma, that the seed is there. The potential is there. Just to do bhajan and sadhan, then slowly it will be manifest. Give water. Giving water. But here is the water means is what? Harikatha. Shravan, Kirtan, Jale, Karava, Sechan. If you listen Harikatha from the bona fide sadhu and guru, that time it will be little sprouted. Then you realize yourself. This thing. That Sanskrit word first is called the Atma Darshan. You Atma Darshan understand? That is called the self-realization. Self-realization. Atma Anubhuti. Atma Anubhuti will come. Actually, what is the Atma Anubhuti? Every second, every moment you are thinking you are in this body. You are not die. And did you think you die? Not today. No. Today, tomorrow, they are not discussing. No, but you are when you living, they say, I am alive. Yes. You are not thinking I died. हम मर नहीं गए, हम जीवित है. I am alive. Do you understand? I am alive. Yes. Who is alive? Atma. This is actually every second, every moment we are thinking I am जीवित है. I am alive. I am जीवित. मर नहीं गए. Okay, sometimes we will give an example. Sometimes when you are sleeping, sometimes you can see, sometimes whole body completely unconscious. Sometimes, not always. And that time you are thinking, no conscious. Then you are thinking, what happened? Then you wake up, then you think, no, I don't do it. Sometimes you can think these things, but when you are very tired, you do too much work, then sometimes your
and body is completely almost unconscious. Do you think the doctor they can understand it? Sometimes their body, then patient saying, sometimes I'm not feeling my hand. Numb. Feeling numb. Numbness, no Sometimes sensation. your patient saying, yes, sometimes I'm not feeling my hand, sometimes I'm feeling my legs, but I am alive. Actually, this is coming from where? Too much weakness, when you are doing hard work or something. Then doctor, no, don't worry, you are alive. Actually, that is not the any disease. There may be some weakness, but we are doing hard work, but maybe so much, what is called, tension, many reasons. I am not doctor, but doctor they know. This is true. So much to do tension or do these things. Sometimes you are thinking, but I am alive. मैं मर नहीं गया, जीवित हूँ. So that means every second, every moment, this consciousness is coming in our mind also. I I'm am alive. alive. I'm living. I am living this जीवित हूँ. But who is alive? My body or my mind? Actually, that is the soul. Soul resides in this body. So now all our senses, everything is working. So that soul is conscious being, and that has also nice beautiful form. We are discussing this. You have beautiful form. But you not Thakur Jayavadharma explain, you have a nice form. But that is very little position, very suksma. Sleeping. This is your things. Does it give an example that the seed, inside the seed, everything's inside it there. Leaves, roots, even another seed, everything is there. Then, when the time will come, that will be manifest. In the same way, your Atma, that Latin position and that thing, you have these things. That with the associated sadhu, guru, it will be manifest. So for this regard, Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Kavuna, Sravanadi Suddha Chitte Kaha Uday. Uday means you manifest. You have everything. So that means one who helps me to manifest my transcendental consciousness from Siddha, he is my Guru. Janma Janma Prabhu said. Who is helping? Then will be Hari Katha. Actually, without listening Hari Katha, your Atma will be never Jagrita, never awakened. It's practiced not. Your Atma will never awaken. Because the Atma, just give an example as like seed. If you put the seed in your house and never give water, this seed will never sprout. In the same way, Hari Katha, that is called the water. Shravan Kirtan Jale Karo Sechan. Shravan Kirtan. When you listen to Hari Katha, then that the seed will be sprout. This is the thing. Why people, everybody has this thing. But why? Because why they are not Jagratan? Why they are working? Because they are not listening Hari Katha. So we are giving intents. You have to listen Hari Katha. इसमें सबसे अभाव वस्तु क्या है? Most precious, important thing. नहीं, अभाव क्या है? भक्ति सिद्धांत का प्रपात में संसार में सबसे बड़ी अभाव है हरि कथा. हरि कथा की अभाव है. अभाव समझो. Lack of हरि कथा. Lacking. What is most lacking in this अभाव में material? lacking. हरि कथा के अभाव है. इसलिए गुरु वैष्णव कहते हैं हरि कथा सुनो. जल की अभाव होने से जैसे वो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा. Without water, the seed cannot sprout. Is the lack of water that the seed will be never sprout. This is the thing. So Hari Katha, that is called the water. Guru Vaishnava, they are coming for this reason, to give the water to you.
You are dry. You are now in the desert. मरुभूमि के तुम पेड़ हो और पानी नहीं है. You understand? You are the tree in the desert. And Guru Vaishnava, they are coming, give the water. And for this, Madhurya Kandamini, first sloka, glorify about Lord Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, he is saying, and I am giving the water because all the conditioned souls, they are the what is called Maruddan के पेड़ है. They are the trees of in the desert. So I am giving the water. Sadhu Guru, why they are coming? अरे हरि कथा सुनो. लोग हरि कथा सुनना नहीं चाहते. People, they don't want to listen हरि कथा. They don't want to water. So Guru Vaishnava by phone, come here, listen हरि कथा. हमें अनेकों काम करने में हमारी रुचि आता है, किंतु हरि कथा जो आता है वो रुचि नहीं होता है. I have no taste to listen हरि कथा. I can expert to many kinds of activities. जब हरि कथा होते हैं ना तब नींद आ जाएगी, तब भाग जाएंगे सब, तब उसमें सारे काम का हमारी याद आ जाएगी. हरि कथा नहीं, हरि कथा ही मूल है. हरि कथा श्रवण इसलिए तो कहते जो हमें हरि कथा सुनाते वही हमारे मित्र है. हरि कथा ही हमारे जल है. जैसे आप पेड़ सूख रहे हैं, जो वो सूखा पेड़ में जो पानी देता है वो पेड़ उसके मित्र मानते हैं कि नहीं मानते हैं? You understand what did he say? Where the person who is giving you water, you consider your best friend. यही तो गुरु के काम है इसी प्रकार. वही मेरा इसलिए कहते हैं जन्म में प्रभु से ही है. By laughter life, birth and birth, he is my master who gives हरि कथा water है. Understand? एक व्यक्ति प्यास में तड़प रहा है, उसके पानी नहीं मिल रहा, कोई उसको जब पानी पिलाते कहते हाँ आपने मेरा प्राण को बचाया, प्राण को दिया पुनः है. अभी आपकी प्यास नहीं लग रहा है. जिस दिन मरुद्यान में जाओगे, रेगिस्तान में जाओगे तो पता चलेगा पानी की एक बूंद पानी की कीमत कितना है. If you go in the desert, then you realize what is the value of the one drop of the water. तो प्यास जब लगेगा तब आपके तो पानी पीने की तो तड़पोगे. अभी आपके प्यास नहीं लग रहे हैं. क्यों प्यास नहीं लग रहा? माया आपको भुला करके रखे, इस संसार के पानी दे करके रखे. संसार के पानी अंडरस्टैंड वाटर ऑफ द मटेरियल थिंग्स, नाइस वाइफ, नाइस चिल्ड्रन, wealth, money, wife, that is called this material water. Material water. You are drinking material water. Too much. Too much drinking water. Drowning. जिस दिन आप इसको अनुभव करोगे तब. You understand? हरि कथा this way सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन श्रीमद् भागवत गीता से भी. हरि कथा दिस इज एक्चुअल आवर रियल फूड. आत्मा के भोजन क्या है? शरीर के भोजन है जो हम जो चावल दाल सब्जी खाते हैं, ये शरीर के भोजन. वी आर टेकिंग द फूड फॉर आवर दिस बॉडी. फूड फॉर माइंड. व्हाट इज द फूड फॉर माइंड? Nice music. Nice music, nice song, nice sweet words. This is food for mind. The food for soul, Harikatha. Your Atma, soul, dying, as like the trees of the desert. आत्मा जो है अभी मरुभूमि के पेड़ के भांति वो तड़प रहे पानी के बिना, और तो हरिकथा के लिए वो तड़प रहे. You don't know. Your soul is now suffering for the one drop of water, as like the trees of The desert. desert.
आत्मा तड़प रहे हैं किंतु आप नहीं तड़प रहे हो, आपके शरीर मन नहीं तड़प रहे। आत्मा तड़प रहे, हर बद्ध जीव की आत्मा तड़प रही है। समझ में आते ना क्या तड़प रही है? हरि कथा के लिए तड़प रहे आत्मा है। आत्मा हरि कथा के लिए तड़प रहे हैं, बोलने के लिए तड़प रहे, दोनों सुनने के लिए सुनाने के लिए तड़प रहे आप अपराध है। जब एक स्थिति में आ जाओगे तो आपको पता चलेगा ये आत्मा आपके किस प्रकार तड़प रहे हरि कथा सुनने के लिए या सुनाने के लिए। केवल सुनने के लिए नहीं, सुनाने के लिए। अंडरस्टैंड? आत्मा तड़प रहे हैं। योर सोल इज नाउ वेरी hankering to speak हरि कथा or to listen हरि कथा। हाँ, वही पानी है, दिस इज कॉल्ड द वाटर। अभी हम ये जो पानी पीता है ये शरीर के लिए हम पानी पी रहे हैं, आत्मा के लिए पानी हरि कथा, आत्मा के भोजन करा ऐसा यही काम feed the soul. आज समझ में नहीं? वही गुरु है जो मुझे वो भक्ति यानी हरि कथा में हमें प्रतिष्ठित करा करके हमारे आत्म ज्ञान दे देते। यही है वही का, उसी कहता है जन्मे जन्मे प्रभु He's my Lord's birth after birth. यही कहता है। गुरु शिष्य किस लिए करते हैं आप बताओ? क्या शिष्य के धन प्राप्ति करने के लिए? ये शिष्य का ज्यादा पैसा है, इसके पैसा मुझे मिल जाए। अरे वो शिष्य भी पैसा छोड़ कर चले जाएगा तो गुरु भी छोड़ कर चले जाएगा। डू अंडरस्टैंड? इफ यू गिव मी $1 million, one day I will leave, and you also, you have also, you will be leave. This is true or wrong? You will die Hey, listen. one day. Listen. हम भी लेकर के नहीं जाएंगे, तुम भी लेकर के नहीं जाओगे, गुरु भी पैसा भी लेकर के नहीं जाएंगे और शिष्य भी लेकर के नहीं जाएंगे। अंडरस्टैंड दिस? बट हरि कथा इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु चाहते हैं मेरे शिष्य कैसे जलपान करें। गुरु वांट्स हाउ माय डिसाइपल ड्रिंक द वाटर। हरि कथा, वाटर मीन्स इज व्हाट? हरि कथा। इसमें शिष्य बनाते हैं हरि कथा सुनाने के लिए, सुनने के लिए, और कोई कारण नहीं है। हम शिष्य नहीं बने, हमारे कथा कौन सुनेगा? कौन है? चलो 2-4 शिष्य बना लेते, कम से कम गुरुदेव की कथा सुन गए, इधर आ जाए सुना हमारी कथा। अच्छा तब तो कम से कम डांटेंगे ना, उसका हक रहेगा। ए बेटा इधर आ जा, हरि कथा सुन। राधाकांत इधर बैठ जाओ, हरि कथा सुनो। हरि कथा सुनाने के लिए गुरु के उद्देश्य यही होता है जो एक शिष्य के हरि कथा सुना, वही हरि कथा पानी पिलाना, और कोई कारण नहीं होता है। वो दीक्षा गुरु हो और शिक्षा गुरु हो, इज दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, दिस इज नॉट आवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज दैट हाउ टू हियर हरि कथा, हरि कथा को सुना है। क्योंकि शिष्य में एक होता है श्रद्धा जगता है। आप क्या मैं जो कथा को, ये गौर गोविंद गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, बोले आप शिष्य क्यों बनाते हो? बोले शिष्य इसलिए बनाते हैं वो हमारे प्रति श्रद्धा से कथा सुनेंगे। शिष्य नहीं बनते हैं तो उसके उतना श्रद्धा नहीं जगते हैं। स्वाभाविक रूप में शिष्य क्या करते हैं, गुरु के प्रति एक प्रबल श्रद्धा होता है। हाँ, हमें गुरु से गुरु मुखा हरि कथा सुनना, साधु गुरु मुखा हरि कथा सुनना है, गुरुदेव के मुख से हम हरि कथा सुने। इसलिए लिख रहे हैं ना, भक्ति की जो पहले अंग क्या है, आदु गुरु मुखा हरि कथा सुनना। यू हैव टू लिसन हरि कथा फ्रॉम गुरुदेव। सो शिष्य के ये एक स्वाभाविक ये रहता है कि मैं गुरुदेव के मुख से हरि कथा सुना, तो गुरु उसी बहाना से उसके शिष्य के हरि कथा सुनाते हैं। हरि कथा जो नहीं सुना तो गुरु से तुम क्या लिया, क्या दिया, क्या गुरु से 10 लाख रुपया दे दिया, क्या 1 करोड़ रुपया दे दिया, गुरु क्या करेगा? चलो गुरु एक मंदिर बना दिया तो गुरु मंदिर में रहेगा क्या? उसके विग्रह रहेगा?
अच्छा चलो वे भी होगा, उससे क्या हंसी मजाक कर रहे हैं। चलो वे भी। विग्रह। किंतु वास्तव क्या है? हरि कथा। मैं तो बार बार ये कथा सुनाता हूँ। सुख परीक्षित महाराज अपने गुरु के कितना पैसा दिया था, अब बता दो पहले मुझे ना। सुखदेव गोस्वामी पाद उससे मांगा, सुखदेव गोस्वामी तो मांगा, परीक्षित मैंने तुमके 7 दिन हरिकथा सुना है, मुझे 7 करोड़ रुपया दे दो, मैं एक मंदिर बनाता हूँ। बोला यू अंडरस्टैंड हिंदी है? नहीं बोला ना। परीक्षित महाराज दिया ना सुखदेव गोस्वामी पाद लिया। कुछ दक्षिणा नहीं मिला है? कुछ को दक्षिणा। अरे दक्षिणा तो वही है, तुम अपने के दक्षिणा दो। दक्षिणा तो वही दिया। दक्षिणा क्या है? अपने के दो, आपके हृदय, अपने हृदय के दो। वो तो देना नहीं चाहते हो, है? और कहीं लूटपाट करके लाया है पैसा, उसको दे रहे हो, ये दो। हम सच बोलता है? हो सकता है आप बेईमानी करके, बात चोरी करके, डकैती करके नहीं करते हो, मैं कह रहा हूँ जानता है। चोरी करके, डकैती करके, बदमाशी करके, लोगों के झूठ बोल करके पैसा कुछ कमाया, उसे कुछ पैसा 2 रुपया 5 रुपया गुरु को दक्षिणा दे। पवित्र हो गया सब। वो 1 करोड़ रुपया तुम बेईमानी करके कमाया, बस सरकार को पैसा नहीं दिया। आजकल वो इनकम टैक्स ये देते हैं ना, है? चलो इसमें मंदिर में दे देता हूँ, और क्या बोले उससे जो है ये ले रिसीव ले लेता हूँ। दिया 10,000 रुपया, आप क्या बोले रिसीव लेते हैं कितना? हाफ ऑफ दैट 50,000 रुपया। हाँ, इंडिया होते नहीं, हॉलैंड में होते, सब जगह करते रहते हैं। वो इनकम टैक्स ताकि दे दिया ना, हम भी बोलते हैं। तो वो अपने पैसे दे, वो गवर्नमेंट के नहीं दे करके यहीं पर दे दिया है। चलो हम उसके निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कर रहे हैं उसके मैं उसके मैं ये नहीं कर रहा हूँ, किंतु वास्तव अपने के तो दो। गुरु क्या चाहते? बोनाफाइड गुरु वही चाहते हैं, तो अपने के दो, स्वाहा करो। मंत्र में, गुरु मंत्र में अंतिम में क्या है? गुरु मंत्र जप करते कि नहीं जप करते? स्वाहा। स्वाहा माने कि स्व माने आत्मा। हाँ, मैं गुरु के, मैं अपने को समर्पित करता हूँ, वह समर्पित करती हूँ। अंडरस्टैंड? आई कंप्लीटली ऑफर माय सेल्फ गुरुदेव। Actually, this is the thing. You understand? Okay, you can give donation. That is you get the sukriti. सुकृति। Okay, because this is your hard work. You do these things. I'm giving 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee, 10 rupees. What you are giving, that is that. That will create the sukriti. But first you have to give your soul to Gurudev. तो सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज से क्या लिया, और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी क्या दिया? अपने को दे दिया। और क्या देना क्या है? आप सुखदेव गोस्वामी पाद यदि हो, आप यदि परीक्षित महाराज हो, तो अच्छी बात है, बात तो सत्य है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी पाद जैसे महात्मा, जैसे गुरु, और परीक्षित महाराज जैसे शिष्य, ऐसे ही तो अच्छे ही है। अपने को देंगे, चलो कोई जरूरत नहीं है, मांगा ही नहीं, मांगने की जरूरत नहीं। वो क्या करेंगे कि वो तो चलेंगे। श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है, भागवत में पढ़ो, जब भागवत कथा समाप्त हुई, परीक्षित की वो क्या बोले तक्षक काटने के पहले सुखदेव गोस्वामी उस स्थान को छोड़कर चले गए। श्रीमद् भागवत में कथा प्रसंग में, द्वादश स्कंध में कथा प्रसंग में ही आ रहे हैं। तो इस कथा करके परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद उस स्थान को छोड़कर चले गए, और परीक्षित महाराज इस सुखदेव गोस्वामी अंतिम उपदेश दिया, हे परीक्षित तुम अभी ध्यानस्थ हो जाओ। तुमको मैंने जो कथा सुनाया अपने इष्ट देव में, उसी में वो आप ध्यानस्थ हो जाओ। ध्यानस्थ समझ लो। Become focused in that. No, you have to completely meditate your Ishtadev and whatever I told you. उसमें ध्यानस्थ हो जाओ। उसकी कथा सुन ध्यानस्थ हो गए हो,
और परीक्षित महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी पाद चले गए। न उनके कुछ लेना था न उनको देना था, वो देव देना है तो दे ही दे दिया। परीक्षित महाराज को जो देना था हरिकथा था दे दिया, और वो तो तब तो वैरागी है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं बस सुखदेव गोस्वामी पाद भगवत लीला में तल्लीन होकर के उस स्थान को छोड़ के चले गए। और परीक्षित महाराज जी उसी समय ध्यानस्थ हो गए और उस कथा आदि को स्मरण करते हुए आत्म शरीर में नित्य गोलोक वृंदावन में पहुंच गए। शरीर रहा, किंतु ब्रह्म साहब के वो करने के लिए, ब्रह्म साहब के प्रतिपादन करने के लिए, माने प्रतिफलित करने के लिए यहाँ पर जो मैंने और एक लीला रचाया, जो कथा प्रसंग जो आ रहे हैं, तो उस समय क्या बोले तक्षक आ गए और परीक्षित महाराज के रक्षा करने के लिए सब बड़े बड़े तंत्र मंत्र विद भी सब लगे हुए हैं। सारी तो तंत्र मंत्र के द्वारा मानो रक्षा कर रहे हैं, कोई आ नहीं सकता। तो इसी प्रसंग में, कथा प्रसंग में वर्णन होते जा रहे हैं। और उस समय क्या कि ना तक्षक देखा है, मुझे तो जाना ही है। और उसी समय परीक्षित महाराज के रक्षा करने के लिए साक्षात धनंतरी भी आ गए। धनंतरी जानते हो, जो समस्त आयुर्वेद की ज्ञाता, जीवित के मृत सभी के भी जीवित कर देने वाले धनंतरी आ गए। आज में वो धनंतरी जब आ रहे थे स्वर्गलोक से, उनको भी बुलाए। धनंतरी आ रहे, धनंतरी कौन है याद रखना, कौन है? स्वर्ग के जो समस्त तंत्र मंत्रविद आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसको कहा जाता है, स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक धनंतरी आ रहे हैं। जब धनंतरी आ रहे थे तो यहाँ पर क्या कि तक्षक विचार के लिए धनंतरी रहे, मैं इसे काटने के साथ ही साथ परीक्षित महाराज को जीवित करा देंगे, तो ब्रह्म साहब व्यर्थ हो जाए। यहाँ पर ब्राह्मण की भी महिमा बताते जा रहे हैं, क्योंकि जो परीक्षित महाराज को अभिशाप दिया था, ये 7 दिन के बाद जो है उसके तक्षक उसके काटेगा और उससे उसकी मृत्यु होगा। समझिए, तो ब्रह्म साहब व्यर्थ हो जाएगा, फिर कोई ब्राह्मण की कोई मानेगा नहीं कलियुग में। यहाँ पर भी एक प्रश्न हो रहा है, लोगों को ब्राह्मण की कोई मानेगा नहीं, बोले ब्राह्मण तो बेकार है, संत महात्मा तो बेकार है, ये साधु जो बोला था वो तो बेकार हो जाएगा। तो उसके लिए भी भगवान स्वयं भी इसी प्रकार, जो मैं इधर ये लीला को रचाया, उस समय तक्षक एक ब्राह्मण के रूप धारण किया और ब्राह्मण के रूप धारण करके धनंतरी के बोले, धनंतरी तुम कहाँ जा रहे हो? मैं परीक्षित महाराज के सभा में जा रहा हूँ परीक्षित को बचाने के लिए। मैंने सुना तक्षक उसके काटेगा और मेरे पास ऐसे दिव्य मंत्र है, मणि मंत्र है, जिसके जीवित कर दे सकता हूँ। तो उस समय ब्राह्मण, तक्षक रूपी ब्राह्मण से कहने लगे, भाई तुम बताओ, तुम परीक्षित बचा यदि जीवित करा दो, तुमके परीक्षित महाराज क्या देंगे बताओ? कथा सुना कुछ इंटरेस्टिंग। तो बोले मुझे धन प्राप्ति होगा, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के क्या चाहिए? आपके क्या चाहिए? पैसा चाहिए, सीधी बात है। डॉक्टर के काम है दवाई देना और पैसा लेना। डॉक्टर थोड़ी दवाई देता, वो तो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, बस हमारे काम है। तो डॉक्टर बोले हमारे यही काम है। तो बोले तुम्हें पैसे, कितने पैसा चाहिए बताओ? तो उसके बाद धनंतरी के पास इतने सोने के मोहर रख दिया, लाखों करोड़ ऐसे रख, और देखते उसके मुंह से बिल्कुल पानी आ गया। ये महाभारत की कथा है। बोले तुम ले जाओ, धनवंतरी के मुख में पानी, धनवंतरी के मुख में पानी आ गए। बोले इतने अर्थ राजा इतने देंगे नहीं देंगे? बोले कोई देंगे। बोले अच्छी बात। तो उसमें तक्षक ने, ब्राह्मण, तक्षक रूपी ब्राह्मण ने उनके एक प्रश्न पूछा, अच्छा बताओ तुम अपने तेज को दिखाओ। बोले क्या तेज दिखाना है? तुम एक मृत वस्तु के जीवित करा सकते हो ना? हाँ हमारे पास ऐसे मणि मंत्र औषधि है, जीवित करा सकते। तो तक्षक ने
कहने लगे देखो मैं इस पेड़ को जो है डस देता हूँ। एक विशाल एक पेड़ है, मानो एक बरगद के पेड़ है और कोई विशाल पेड़ है जिसमें पशु एक पक्षी आदि घोंसले बना करके रखे हैं, कोयल आदि उन्होंने पक्षी आदि जो है, और फल फूल में इतने सुंदर सुंदर लदे हुए हैं। तो तक्षक ने क्या कि उसको डांसा है, बस देखते देखते वो वृक्ष बिल्कुल जल करके खाक है, बिल्कुल जैसे छाई भस्म जैसे रहा। बस तक्षक ने कहा इसको तुम जीवित करो, तुम तब तो समझे। तक्षक ने कहा धन्वंतरी को तुम इसको जीवित करो। तक्षक ने धन्वंतरी ने क्या कि बस ऐसे मंत्र मुनि मंत्र करके प्रश्न कर दिया, पुनः वो जीवित हो गया। महाभारत में कथा आ रहे हैं। तब तो तक्षक विचार कर तो जरूर इसे परीक्षित को बचा देंगे, और परीक्षित के बचा दे तो ब्राह्मण साफ व्यर्थ हो जाएगा। दूसरी काल में कलिकाल में कोई ब्राह्मण की कोई मानेगा नहीं, साधु की कोई मानेगा नहीं है? बोले साधु ने साफ दिया, कोई काम नहीं हुआ है? तो उनके पास लाखों करोड़ मणि मुद्रा रख दिया, बोले लाओ, वहीं पर भागा दिया। फिर तक्षक आगे चलने लगे, किंतु आगे जाएंगे तो परीक्षित महाराज के सभा में सारे बड़े बड़े और भी लोग सब बड़े बड़े ये बैठे हुए, सब तंत्र मंत्रविद सब बैठे हुए। तक्षक प्रवेश नहीं कर सकते, उसको भेद कर। तक्षक विचार करने लगे कैसे कैसे जाऊं, कैसे परीक्षित के पास जाकर तो डांटेंगे काटेंगे, जाए कैसे? अभी तक ब्राह्मण के रूप में है, अभी तो ब्राह्मण के रूप में है ना, क्योंकि वहीं पर देखा परीक्षित महाराज के सभा में हजारों मंत्रविद तंत्रविद सब बैठे हुए हैं परीक्षित महाराज रक्षा करने के लिए। एक्चुअली परीक्षित महाराज की आत्मा तो चली गई कहाँ, गोलोक वृंदावन में पहुंच गए थे, उनके शरीर पर पड़ा हुआ है। सोचा है कि परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं, क्योंकि उस उनके जो है आत्मा शरीर में वो चले गए। ये तो बताते जा रहे हैं, आगे जाकर इस कथा को भी सुनाएंगे जिसमें वो परीक्षित महाराज के पुत्र क्या नाम है जिन्होंने जन्मेंजय, जन्मेंजय के जो कथा जो है ये भागवत में ये सब कथा है। चलो तो उसे तक्षक ने क्या कि जाएंगे कैसे, इतना सहज प्रवेश करना इतना सहज नहीं है। बड़े बड़े तंत्र मंत्रविद परीक्षित महाराज के शरीर को घेर करके रखे हैं। सब सोच रहे परीक्षित महाराज जीवित है और आत्म ध्यान में बैठे हुए, क्यों बोल दिया ना ये मैं ध्यानस्थ में ध्यान में बैठे हुए, किंतु उसे वास्तव में चले गए। चलो तो उस समय तक्षक ने क्या कि एक सुंदर एक कीड़ा के रूप धारण, कीड़ा समझते हो, स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटा कीड़ा के रूप धारण किया। और कोई एक व्यक्ति उसमें एक व्यक्ति जो है फूल लेकर के जा रहे थे परीक्षित के जो है अर्पण करने के लिए फूल। भाई इतने सिक्योरिटी गार्ड सब एक एक चेक कर रहे हैं कहीं है कि नहीं है? आप समझ नहीं सकते हो उस समय कितने सिक्योरिटी गार्ड कहीं सब इसी के जो है लिख करके रखे, किंतु उस फूल के अंदर में छोटा सा कीड़ा के रूप में तक्षक रहा गया है। और जो परीक्षित महाराज के जब अर्पित कर दिया, गले में अर्पित कर दिया ना, बस वो तक्षक फूल से निकल करके आकर के डांस दिया, बोलो वृंदावन बिहारी। और उसमें परीक्षित महाराज के शरीर देखते देखते सबके सामने में 20 जाल में मानो जल गया। अच्छा ये तो लीला है? तो इसी कथा को जब जब राजा हुए, परीक्षित के पुत्र जन्मेंजय जब राजा हुआ, वो राजा होने के बाद पितृघातक की प्रतिशोध लाने के लिए उन्हें सर्पयज्ञ अनुष्ठान किया था। ये बृहद भागवतम में कथा को आ रहे हैं, जन्मेंजय और जैमिनी उपाख्यान में आ रहे हैं, बृहद भागवतम पहले अध्याय में आ रहे हैं। जन्मेंजय उसी कथा को परीक्षित महाराज के पुत्र जैमिनी ऋषि जन्मेंजय को कथा सुना रहे। उस समय उन्होंने क्या किया, प्रतिज्ञा कर दिया ये सारे सर्पकुल को मैं ध्वंस कर देता हूँ।
और उस समय जन्मेंजय बड़े बड़े ऋषि महात्मा को बुलाया, तब मर्मांग ऋषि को बुलाया, बोले सर्प यज्ञ करो, सारे सर्पों को मार दो सब मंत्र को। इतने विशाल यज्ञ हुई, बड़े बड़े ऋषि लोग एक एक सर्प के नाम लेकर के मंत्र आहुति देने लगे, और सर्प आकर के स्वाहा स्वाहा करके सब है। और तक्षक के नाम जब आ गया तक्षक डर गया, तक्षक दौड़ करके सर्पलोक में चले गए हैं। इंद्र के सिंहासन को वो लपेट दिया, बिल में पेट में ले लिया है। और इधर जो यज्ञ करने वाले जो होता है आहुति देने वाले, ओम तक्षाय स्वाहा, ओम तक्षाय स्वाहा, तक्षक तुम जहां पर है आ जाओ यहाँ पर, स्वाहा। भाई इतने मंत्र की शक्ति है, इंद्र के सिंहासन समेत तक्षक आने लगे, खींच लेगा इंद्र समेत सब देवता लोग हाहाकार करने लगे। क्या किया इंद्र के पता नहीं था कब तक्षक आकर के उनके सिंहासन की तरफ कर लिया, और इधर से इंद्र से मेरा सिंहासन कहाँ जा रहा है देखो है। तब उस समय वो ऋषि कौन सा ऋषि, ब्रह्मा आदि देवता लोग आए और आकर के जन्मेंजय के समझाया, हे जन्मेंजय देखो हिंसा के द्वारा है कोई लाभ नहीं होता है, हिंसा के द्वारा नहीं, प्रतिहिंसा के द्वारा कुछ लाभ नहीं। इसके द्वारा तुम सर्पकुल ध्वंस करो तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मा जी के सृजन जो है, ब्रह्मा जी का मेरा सृजन नष्ट हो जाएगा, प्रकृति की जो क्या बोले एक क्षमता जो है, क्या बोलते हैं इसके, इक्विलिब्रियम जो है वो बिगड़ जाएगा है? हर प्रकृति में हर जीवों की एक नियम होता है रहने का, उस समय एक्चुअल उस समय उनके समझाया, ये तुम्हारे पिताजी जो है एक्चुअल ध्यानस्थ के आत्म शरीर में चले गए, ये भगवान की कथा श्रवण किया तो साक्षात रूप में आत्म शरीर में चले गए, उनके शरीर कर रहा था, उस शरीर के ऊपर उन्होंने डासा केवल ब्रह्म साप को स्थापित करने के लिए है। तब तुमको मैं कहता हूँ तब वो जमिनी ऋषि ने कहा, ये देखो जब तुम्हारे पिता जब सुखदेव गोस्वामी से कथा श्रवण करे तब मैं उस समय था, उस कथा को मैंने सुना, तुमको उस कथा को तुमको मैं श्रवण करा दूं, उस कथा श्रवण करने से तुम्हारे आत्मा भी बहुत गति प्राप्त करेंगे, तुम्हारे पिता के भांति तुम्हारे भी आत्मा नित्य गोलोक वृंदावन धाम में चले जाएंगे। इसके बाद जैमिनी ऋषि जन्मेंजय के जो है उसी कथा को श्रवण कराया है। कहने लगे जो भागवत कथा मैंने सुना था, कौन करे, जैमिनी ऋषि कह रहे हैं मैंने जो भागवत का सुखदेव गोस्वामी पाद से मैं सुना था है, उसी कथा को तुमको मैं बताता हूँ, और उसी कथा को जो है अभी कौन बता रहे हैं, ये बृहद भागवत सनातन गोस्वामी पाद बता रहे हैं, उसी कथा यही है बृहद भागवत की कथा है। इसलिए भागवत कथा श्रवण करने से आत्मा साक्षात रूप में वो नित्य धाम में चले जाएंगे, सर्व सिद्धि हो जाता है, उसी की कहा जाता है सर्व सिद्धि वस्तु सिद्धि, आगे जाके उसी परिकर हो जाता है। इसलिए वही हमारे कहते हैं, इसलिए कहते हैं वही गुरु है, जो गुरु हमारे हृदय की आत्मा को जागृत करा करके नित्य गोलोक धाम में पहुंचा देते हैं, उसी के गुरु कहते हैं। उसके जन्म क्या बोलते हैं, दिव्य ज्ञान दिला जई जन्म जन्म प्रभु से है, वही गुरु तत्व है। और वही गुरु कौन हो गया, एक्चुअल अक्षय अखंड गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु, और उसी के प्रकाश रूप में हमारे पास में जो है विराजमान होते हैं। इसलिए कृष्ण महंत गुरु है, जीवेर साक्षात नहीं गृह स्मृति गान, जीवेर कृपाय कृष्ण कोइल वेदादि पुराण, जीवों की जो है पता नहीं, इसे स्वयं भगवान गुरु रूप में, शास्त्र रूप में, साधु रूप में प्रकट होते हैं हमारे पास है।
ये शास्त्रों के संग भगवान है, गुरु साक्षात भगवान है, चैत्य गुरु के रूप में वो हमारे पास आता है। वही हमें जो है वो प्रेरणा देते हैं, वही मानतो ग्रुप में आते हैं, उसे कि हम समझे क्या है, उसी की हम तो कहते हैं कथा सुनो। अरे सारा जीवन तो कितना जीवन तो खाया और कृष्ण जीवन तो पायखाना किया, खाया और पायखाना किया हर जीवन हर समय है। खाने के बाद हम लैट्रिन में जाते हैं। कल रात को खाया था, सुबह चले गए, फिर अभी खाएंगे दोपहर के चले। जो खाता है और वो जाता है, किंतु हरि कथा जो है वही हमारे साथ में आता है, साथ में आता है और साथ में जाता है। वही हरि कथा ही है, वो वही है आत्मा की क्या है, खुराक। दिस इज द फूड फॉर सोल। ये हरि कथा हमारी आत्मा के भोजन का है। आज में ब्रेकफास्ट हो गया, है ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट। हाँ, इसको आत्मा की भोजन कराओ, आत्मा के भोजन, शरीर के भोजन महाप्रसाद। हाँ, महाप्रसाद की जय। गुरु तत्व की जय। अच्छा चलो प्रसाद लो। हाँ? हाँ? Gurudev, you can recite this sloka again. Nitya Sita Krishna. नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध प्रभु नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध प्रभु नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदय। इसमें करो ये लिखा है, करया उदय, क्या बोला, उदय, deliver you। नित्य सिद्धे उदय मीन्स कृष्ण प्रेम साधना कबीर होय, श्रवणा आदि श्रवणादि शुद्ध चित्त के, कबरना श्रवणादि शुद्ध चित्त के द्वारा इसे प्रकाश प्रकट कराओ। शुद्ध चित्त होना चाहिए। शुद्ध चित्त, अभी हमारे चित्त अशुद्ध चित्त है, अशुद्ध यही श्रवण करते करते चित्त शुद्ध शुद्धिकरण होगा तब। हाँ? चैतन्य चरिता के श्लोका बहुत अच्छी है, है? बहुत मीठा श्लोका है। एक घंटा हरी कथा बोल दिया ना तो ब्रेकफास्ट आ गया। आत्मा के भोजन, शरीर के भोजन चाहिए। हाँ? आत्मा के भोजन हरी कथा, शरीर के भोजन चावल दाल सब्जी दो महाप्रसाद। दूसरी प्रकार का महाप्रसाद, मगर वो भी महाप्रसाद है ना, वो भी महाप्रसाद। तो ये तो शरीर के भोजन होते हैं, मगर भी जीव के भोजन भी होते हैं उसमें। आत्मा के भोजन चल बहुत प्रमाण। आत्मा का भोजन करो।